Good morning, students. How are you? Okay, now start the chapter's next topic. We will study the topic of Harshvardhan. Before we start the chapter, we will revise all the topics. Harshvardhan was born on 606 CE. He ruled from 606 CE to 647 CE. And more about his families. His father name was Prabhakar Vardhan. He was ruling Thaneshwar. After his father's death, his elder brother was king. But Rajyavardhan started ruling Thaneshwar. Later on, he was killed by Shashank. Shashank was the king of God. Okay, and now she was his sister Rajyasri. Sri was imprisoned by Devgupt. Devgupt was the king of Malwa. Okay, after he became the king of Thaneshwar's Harshvardhan, he searching his sister and she ran away the Vindhya forest. Okay, Harshvardhan by traveling to whole empire himself. Okay, and now start the next topics. Imprints left by King Harshvardhan. Okay, first of all, I read the paragraph. Harsh built many rest houses, wells, stepwells, lakes, mudds, vihars, and also prohibited animals lagat. Every year he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. There he would donate generously till his entire treasury was emptied and would even give away the ornaments he would be wearing at the time. Okay. Now explain all the points. Imprints means अपने पीछे वो क्या क्या बना के छोड़ गए थे. He built rest houses, wells, lakes, muds, stepwells, etc. He banned animal killing. उन्होंने जो बलि चढ़ाते थे ना पहले, वो बलि चढ़ाने के ऊपर यानी एनिमल किलिंग के ऊपर भी उन्होंने बैंड किया था. एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट. बुद्धिस्ट मंक के लिए वो हर साल एक रिलीजियस मीट रखते थे, यानी धार्मिक जो मेला बोला जाता है ना, वैसे धार्मिक मिलना उनका होता था ओनली फॉर बुद्धिस्ट रिलीजियस के लिए. एवरी 5 years ही ऑर्गेनाइज रिलीजियस फंक्शन एट प्रयाग. हर 5 साल में वो एक रिलीजियस फंक्शन करते थे धार्मिक कार्यों के लिए. रिलीजियस मीन्स धार्मिक कार्यों के लिए, जहाँ उनका मिलना होता था. कहाँ करते थे वो ये फंक्शंस? एट प्रयाग. वेयर इज सिचुएटेड इन प्रयाग? एंड हु रीनेम्ड द प्रयाग? Okay, Yogi Adityanath renamed the Allahabad to Prayagraj because this place is the confluence of 3 holy rivers. Which 3 holy rivers? Namely Saraswati, Yamuna and Ganga. Hence the name of Prayagraj. Okay. There he would donate everything is treasury with open hearts. अपने ट्रेजरी के अंदर से, यानी अपने जो खजाना होता है ना, वो खजाने के अंदर से ओपन हार्ट, खुले दिल से वो सबको डोनेट करता था. समटाइम्स ही डोनेटेड द गारमेंट ऑर्नामेंट्स दैट ही वोर. कभी कभी तो वो डोनेट करने में भूल जाता था और इतना खो जाता था कि वो अपने पहने हुए गहने भी जो होते थे ना, ऑर्नामेंट्स होते थे, वो भी डोनेट कर देता था. ओके. Now, he donated to all the expensive jewelry for the needy person, needy people. He donated whatever he used to there.
जो भी चीज़ वो यूज़ करता था वो डोनेट करता था. ओके. नाउ सेकेंड पॉइंट वॉज एम्पेरर हर्षवर्धन्स एम्पायर. बट देयर वॉज वन ऑफ द फेमस पोएट एंड राइटर. उनके कोर्ट के अंदर एक बहुत ही फेमस पोएट एंड राइटर थे, अ संस्कृत पोएट एंड राइटर. ही रोट हर्षचरित एंड कादम्बरी. वो फेमस राइटर कौन थे? बाण भट्ट. एंड हिज फेमस पोएम वॉज हर्षचरित एंड कादम्बरी. नाउ दिस बुक आर फेमस इन एंशियंट टाइम also, and Harshcharit is a book which is you read you are going to know हर्षवर्धन्स लाइफ. ये जो बुक थी ना, वो बुक के अंदर हर्षचरित, हर्ष मीन्स जो किंग थे हर्षवर्धन, उनके नाम का फर्स्ट जो वर्ड था वो हर्ष, एंड चरित मीन्स उनकी लाइफ. यानी हर्षचरित के अंदर हर्ष की पूरी लाइफ की डिटेल दी गई थी. ओके. किंग हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट राइटर. किंग खुद भी एक बहुत बड़े राइटर थे. ही रोट 3 प्लेज. उन्होंने 3 प्लेज मीन्स नाटक लिखे हुए थे. ओके. 3 प्लेज वॉज विच आर देयर, एंड देर आर वेरी पॉपुलर प्लेज. फर्स्ट ऑफ नागानंद, सेकेंड वन रत्नावली, एंड थर्ड वन इज प्रियदर्शिका. ओके. नाउ next topic of Emperor Harshvardhan's empire. Harshvardhan's empire had lot of remarkable thing of his empire. One of that is Nalanda University. Okay, this one, Nalanda University. Okay. King Harsh extended all possible assistance to Acharya Silbhadra and made Nalanda into a world famous university. Harshvardhan gave all possible help to Acharya Silbhadra and made Nalanda world famous university. हर्षवर्धन जो थे वो जो वहाँ के आचार्य थे सीलभद्र, उनको इतनी हेल्प करते थे और उनको जो भी कोई भी चीज़ ऐसी चाहिए थी जो भी पॉसिबल हो सके वो सारी चीज़ें उन्हें दी जाती थी कि जिसकी वजह से उनकी जो यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी वो वर्ल्ड फेमस हो जाए. ओके. ही डिड एवरीथिंग फ्रॉम हिज साइड टू कीप असिस्टेंस टू आचार्य शिवभद्रा बिकॉज टू मेड नालंदा यूनिवर्सिटी टू फेमस throughout the world. He also waiving the access to the revenues of 100 villages to take and to collect the revenues. उन्होंने the university had access to revenues of 100 villages given to them by King Harsh for its upkeeping and maintenance. उन्होंने हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम पे 100 villages डोनेट किए थे. Why have you donate? Because उनके यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनको जो सारी फैसिलिटी दी जाती थी वो फ्री ऑफ चार्जेस था. तो यूनिवर्सिटी का काम कैसे होगा? तो वो काम के लिए उन्होंने 100 विलेजेस डोनेट किए थे. ओनली फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट किया गया था उनकी संभाल रखने के लिए और मेंटेनेंस के लिए. ओके. वाई सो दैट टू अपकीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. कैसे वो कर सकते थे? ओके. एंड नो केमिस्ट आचार्य नागार्जुन हु प्रूव्ड दैट आयरन, arsenic and mercury as could be used as medicine also belonged to Nalanda University. There was one of the famous chemists during that time and one of the famous acharya in that time. Who is he? Now we all see the serial of Chandragupta Maurya. He was the Chanakya.
चाणक्य जो थे वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के फेमस आचार्य थे। उसी टाइम में एक और आचार्य हुए जिनका नाम था नागा, क्या नाम था उनका, नागार्जुन। ओके, आचार्य नागार्जुन, ही वॉज आचार्य नागार्जुन हु प्रूव्ड दैट, उन्होंने क्या प्रूव किया था, आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी मीन्स आयरन मीन्स लोहा and arsenic means one kind of poison and mercury means which is mainly used by the thermometer। इन तीनों का ऐश मीन्स राख बनाया जाता था। ओके, इन तीनों का जो राख बनाया जाता था, इफ़ यू यूज़ दिस एनिमेक्ट एसिस वी कैन मेक मेडिसिन आउट ऑफ इट। और वो राख में से वो क्या करते थे, मेडिसिन बनाते थे। सो हु वॉज द केमिस्ट, द केमिस्ट बिलोंग टू द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो यही केमिस्ट थे जो नालंदा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। अपार्ट फ्रॉम देयर आर फ्यू फैक्ट्स अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे फैक्ट्स आपको मैं बताती हूँ। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के आप पिक्चर्स देख रहे हैं। Nalanda University, this scene picture in Nalanda University. Okay, this picture is Nalanda University. This presently situated in Bihar states of India. Okay, now first fact is students need to clear entrance exam before they take admission. Over here they need to clear the entrance exam मीन्स नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी को एडमिशन लेना होता है तो उनको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करनी होती थी। स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इन टू नालंदा यूनिवर्सिटी, नाउ दे हैव टू गिवन अ एंट्रेंस टेस्ट। अभी आप लोग भी एंट्रेंस टेस्ट देते हो ना फॉर द एडमिशन। लाइक प्रेजेंट टाइम वी आर गिविंग द टेस्ट, वी आर गेटिंग द एडमिशन। जिसे हम प्रेजेंट टाइम में अभी एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसके बाद हमें एडमिशन मिलता है। सेम हियर, यहाँ भी वो ऐसे ही करते थे। अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ वेर गिवन टू द स्टूडेंट्स, फैसिलिटीज़ लाइक फ्री एजुकेशन, लॉगिंग, बोर्डिंग, वी ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। दिस आर फैसिलिटीज़ विच दे हैव टू यूज़। ये सारी फैसिलिटी वो लोग यूज़ करते थे। ऑल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। पूरी फैसिलिटी उनको कैसे दी जाती थी, फ्री ऑफ चार्ज। एंड थर्ड वन इज़ द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नॉन एज धर्मगंज। मीन्स यहाँ उनके लिए रीडिंग के लिए जो एक लाइब्रेरी बनी हुई थी, देयर वॉज अ लाइब्रेरी, वॉज एक्सटेंडेड लाइब्रेरी एंड इट नेम वॉज धर्मगंज। इस लाइब्रेरी के अंदर 5000 से भी ऊपर बुक्स अवेलेबल थे और वो भी रियल बुक अवेलेबल थे। बट जो मुगल्स जितने भी यहाँ अटैक करे, उन्होंने ये नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जलाया यानी बंद किया, तो वो सारी जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे या फिर जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी, वो बुक्स वहाँ सारी जल गई, जिसकी वजह से हमारे पास वो बुक्स अवेलेबल नहीं रही। ओके, नाउ होपफुली you understood the topics. Now in next class will be next topics. Have a nice day. Okay students, bye.